ہماری جیسے کہ شہید کی قربانی دے سکتے ہیں تو یاد رکھ لینا قائد سے، میں تو قائد نہیں، میں تو خادم ہوں، خادم سے لے کر کارکن تک، کارکن سے لے کر ذمہ دار تک، ذمہ دار سے لے کر چوکیدار تک ہم اپنے حق کے لیے بھی اسی طرح پہرا دیں۔ اور میں تمام ان اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کو ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ ہمیں ناپسند کر سکتے ہیں، آپ کسی بات پر ہم پر اعتراض کر سکتے ہیں، آپ ہم سے کسی بات پر ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہم اپنے لیے نہیں آئے، ہم اپنی دستار اور پگڑی کے لیے نہیں آئے، ہم محمد عربی کے دین کے لیے آئے ہیں، اس دین کے لیے آئے ہیں، اس آقا مدنی کے دین کے لیے آئے ہیں جس کا کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں اور میں بھی پڑھتا ہوں۔ اس وقت یہ امتحان آپ کا ہے کہ آپ نے کفر کے نظام کے ساتھ، آپ نے ظلم کے نظام کے ساتھ، آپ نے جبر کے نظام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا محمد عربی کے نام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور آج پاکستان کے اندر وہ لوگ جنہوں نے 76 سالوں سے پاکستان کو لوٹ کے کھایا ہے، آج شکاری پرانے ہیں، نئے جال ہیں، کوئی یہ لے کر آ رہا ہے وہی پرانے جناب قوم کو نوچ نوچ کے کھانے والے نعرے روٹی کپڑا مکان، قوم کا روٹی کپڑا مکان پہلے چھین لیا، پھر ترقی کے دعوے دار آ رہے ہیں آج پاکستان میں، اور آج پھر ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے یہ سن کر کہ وہ لوگ، وہ جماعتوں کے لوگ جو چھوڑ چکے ہیں ان تمام باتوں کو، وہ آج کہتے ہیں کہ ہم اپنے شہر کو اس بدامنی کے دوبارہ دامن میں دھکیل نہیں سکتے، ہم اپنے شہر کی روشنیاں خراب نہیں کر سکتے، ہم اپنے شہر کی گلیوں کو خون کی بو نہیں سنا سکتے، ہم اپنے شہر کی گلیوں کے اندر اپنے کو خون بہا نہیں سکتے۔ میں آج ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس موقع ہے، کراچی کا امن پاکستان کا امن ہے، کراچی کا امن سندھ کا امن ہے، کراچی کا امن عوام کا امن ہے، اس لیے آج اپنا فیصلہ اس جانب سنائے جو کراچی کے امن کے بھی امین ہے اور کراچی کے عوام کے بھی امین ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ایک ووٹ، یہ صرف پرچی نہیں ہے، یہ ووٹ امانت ہے، امانت، یہ ووٹ آپ کا ایک ووٹ، میں پوری قوم سے کہتا ہوں کہ آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے تخت کے اوپر ایماندار آدمی آنا چاہیے یا بددیانت آنا چاہیے، یہ آپ کا ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ غریبوں کا چولہا جلنا چاہیے یا بند ہو جانا چاہیے، آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کے اندر ظلم کا نظام چلنا چاہیے یا حق کا نظام چلنا چاہیے، آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس قوم کی بیٹیوں کو عزت سے رزق ملنا چاہیے یا ان کی عزت تار ہونی چاہیے، آپ کا یہ ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ زینب جیسی بچیوں کا قتل اور ریپ ہونا چاہیے یا ان معصوم، ان جناب چھوٹی بچیوں کا عزت اور حفاظت ہونی چاہیے، آپ کا یہ ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ غریب کے گھر کا چولہا جلنا چاہیے، غریب کے گھر کی لائٹ چلنی چاہیے، غریب کے گھر کا پنکھا چلنا چاہیے یا اس کو بجلی کے بلوں کے نیچے مار دینا چاہیے۔ آپ نے اپنے ووٹ کو امانت سمجھتے ہوئے اس کے حوالے کرنا ہے جو ختم نبوت کا بھی پاسدار ہے، جو ناموس رسالت کا بھی پاسدار ہے، جو قوم کی دیانت کا بھی پاسدار ہے، جو قوم کی عزت کا بھی پاسدار ہے، جسے قوم کے وقار کا بھی خیال ہے، جو کشمیر فروش نہیں ہے، جو فلسطین کے معاملے پر آواز اٹھانے والا ہے، جو قوم کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے، جو کرونا میں ملک سے بھاگ کر جانے والا نہیں ہے، جو غربت اور جناب مہنگائی میں پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے، جو سیلاب میں قوم کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے، جو یہاں سے فلائٹیں کر کے لندن اور یورپ بھاگنے والے نہیں، جو کہتے ہیں کہ اوہ ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کے اندر کیا ہونا چاہیے، کیا اس ملک کے حکمرانوں کو امریکہ اور کفر کی طاقتوں کے آگے لیٹنا چاہیے یا اس ملک کے حکمرانوں کو طیبہ کے رستے پر جا کر کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ اس قوم کے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے یا ان کا حق کھینچ کر، ان کا حق جناب چھین کر ان پیسوں سے لندن اور یورپ میں اور دبئی میں اپارٹمنٹس ان حکمرانوں کے بننے چاہیے۔ آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ قوم
बच्चों को 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिलनी चाहिए, पूरी कौम के गरीबों को उनके हकूक मिलने चाहिए, उनके ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। यह आपका वोट फैसला करेगा कि कौम किसके साथ खड़ी है, कौम क्या चाहती है। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अदल का निजाम कायम हो, इस मुल्क के अंदर जुल्म का सूरज डूब जाए, इस जुल्म की रात अंधेरी मिट जाए, तो आपको तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ देना होगा, TLP का साथ देना होगा, और 8 फरवरी के दिन अपने घर वालों समेत सबको निकलकर क्रेन पर ठप्पा लगाना होगा, और ठप्पा लगाकर घर नहीं जाना बल्कि वहां बैठ जाना है और कहना है कि आज पाकिस्तानी कौम अपना हक लेने कर रही है, और ये कहते हुए जाना है कि हम मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे। मैं अहलियाने कराची से माजरत चाहता हूं कि मेरा गला, आवाज, मेरे गले की हालत खराब है, लेकिन एक बात कहता चलूं कि जितनी मेरे गले की हालत खराब है, इतनी ही आपके सियासी मुखालफों की हालत भी खराब है। इस वक्त तमाम जमातें जो तहरीक लब्बैक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं, उनकी हालत ऐसी खराब है, उन्हें मालूम ही नहीं कि तहरीक लब्बैक क्या करने जा रही है। तहरीक लब्बैक एक ऐसा पैगाम देने जा रही है आज के दिन कि लोगों की आंखें खुली रह जाएगी और मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आ जाएगा। और ये वो लोग नहीं जो बिरयानी पर या कीमे के नान पर आए हो, ये इस पर नहीं आए, ना बिरयानी पर आए हैं, ना कीमे के नान पर आए हैं, ये मोहम्मद अरबी के नाम पर आए हैं। और मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर कैंपेन की है। इस वक्त सर के बालों से लेकर पांव तक थकन से चूर है, लेकिन इस स्टेज के ऊपर आकर आज मेरी अहलियाने कराची ने थकन दूर कर दी है और ये बता दिया है, अहलियाने कराची का जज्बा बता रहा है कि हमें जो अमीरुल मुजाहिदीन हुजूर से वफा करने का दर्स देकर गए हैं, जो इमामुल अंबिया के दीन का दर्स देकर गए हैं, जो इस्लाम से वफा का दर्स देकर गए हैं, जो पाकिस्तान से वफा का दर्स देकर गए हैं, वो दर्स हमने बुलाया नहीं बल्कि अपनी नस्लों को भी मुंतकिल कर दिया है। हमने अपने बच्चों को भी वो दर्स सिखा दिया है कि अब तो हमारे बच्चे भी ये कहते हैं कि अब के गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे, अब के गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे। मैं सवाल करता हूं उन लोगों से कि तुमने इस कराची शहर का हाल क्या किया है। देखो, ये शहर तो वो शहर है जिसके गली कूचों से, जिसके कोनों खदरों से, घर के दरीचों से भी दरूद सलाम की आवाजें आती है। ये वो शहर है जहां सुबह शाम नाते पड़ी जाती है। ये वो शहर है जो कौम को इतना बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है। ये वो शहर है जिसके अंदर पोर्ट मौजूद है। ये वो शहर है जिसके अंदर इतने बड़े दिमाग मौजूद हैं। ये वो शहर है जिसको इल्म का शहर कहा जाता है। ये वो शहर है जिसको खुशबुओं का शहर, रोशनियों का शहर कहा जाता है। आज तुम्हारी बददियांतियों की वजह से, तुम्हारी नाअहलियों की वजह से, तुम्हारी करप्शन की वजह से, तुम्हारी चोरियों की वजह से, तुम्हारी नाअहलियों और बददियांतियों की वजह से आज इस शहर के बासी पानी पानी जनाब पानी के अंदर डूबे हुए हैं, लेकिन साफ पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। और नाअहलो, याद रखो, अब तुम्हारे जाने का वक्त हुआ चाहता है। अब मोहम्मद अरबी का दीन इन शहर वालों को, इन मुल्क वालों को, इन वतन वालों को, इन सूबे वालों को हक दिलवा कर रहेगा। मैं हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर का खुतबा मुकम्मल कर दूं। अस्सिद्क़ु अमानतुन वल कज़्बु खयानतुन, सच्चाई अमानत है, झूठ बददियांती है। जिनकी सियासत का आगाज करप्शन के पैसों से होता हो, वो मुल्क को कैसे संवार सकते हैं। जिनके पैसे सूद पर पड़े हों आलमी बैंकों के अंदर, वो कौम को कैसे संवार सकते हैं। जिनके बच्चों के तालीम और इलाज बैनुल अक़वामी ममालिक में हो, यूरोप और पेरिस में होते हो, वो लंदन में होते हो, वो कौम के बच्चों को सेहत और तालीम कैसे दे सकते हैं।
जिन की जायदादें और जिनके बैंक अकाउंट्स स्विस बैंकों और जनाब फ्रांस जैसे लानती मुल्कों में पड़े हों, वो कौम के बच्चों को कैसे 2 वक्त का खाना दे सकते हैं? कौम का रहनुमा वो होगा जिसका जीना और मरना कौम के साथ होगा, जिसका उठना और बैठना कौम के साथ होगा, जिसकी जायदादें और बच्चे कौम के साथ होंगे, जिसका इलाज, सेहत और तालीम कौम के अंदर होगा। अगर ये शख्स को ये समझता है कि हम बाहर से लाए हुओं को हम ये हमारे ऊपर मुसल्लत कर देंगे, तो मैंने कहा इनको हम पर मुसल्लत ना करो, इनको हाकिम बनाना है तो लंदन, क्योंकि इनकी खुशियां और गमियां लंदन में, इनका जीना और उठना और बैठना लंदन में, इनकी जायदादें लंदन में, इनके अपार्टमेंट्स लंदन में, इनके सरे महल लंदन में, इनके अकाउंट्स दुबई में। जाओ इनको वहां जाकर हाकिम बनाओ। पाकिस्तान पर हुक्मरानी वो करेगा जिसका जीना और मरना पाकिस्तानी कौम के साथ होगा। पाकिस्तान के वारिस वो बनेंगे जो खत्म नबुव्वत के अलमबरदार होंगे, जो नामूसे रिसालत के पहरेदार और चौकीदार होंगे, जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के भाई होंगे, जो जनाब मुमताज कादरी के जानशीन होंगे। अब पाकिस्तान पर हुकूमत वो लोग करेंगे जिनका जीना और मरना पाकिस्तान के साथ होगा, और जिनका ये नारा था, जिनके बड़ों का ये नारा था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? एहलियाने कराची, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? दस्तूर रियासत क्या होगा? और रही बात हमारा मंशूर और दस्तूर पूछते हैं, मैंने कहा पहले अपना मंशूर और दस्तूर तो देखो। क्या अपनी कौम के बच्चों को मारना, उनको बोरी बंद लाश में बंद करना, ये क्या दस्तूर है तुम्हारा? ऐसा मंशूर है तुम्हारा? अपनी कौम के बच्चों को, हर के बच्चों को दूध का फीडर तक न देना, क्या ये मंशूर है तुम्हारा? सैलाब में जनाब घिरे हुए लोगों की हालत तक न पूछना और करप्शन के पैसे को निकाल कर इलेक्शन लड़ना, क्या ये मंशूर और दस्तूर तुम्हारा है? तो लो सुनो, हम ऐसे दस्तूर को भी नहीं मानते, हम ऐसे मंशूर को भी नहीं मानते। हमारा मंशूर पूछते हो तो सुनो, मैं झूठे वादे नहीं करता। अगर हमारा दस्तूर पूछते हो तो मैं झूठे वादे नहीं करता। मैं उर्दू में कर दूं या पंजाबी में? पहले उर्दू में सुनाता हूं, फिर पंजाबी में सुनाता हूं। और मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं। मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं। मैं आपके वोट की कीमत डालूंगा, मैं रिजवी हूं, मदारी नहीं, पटवारी नहीं। आप पंजाबी में, और मैं झूठे वादे नहीं करता, मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं। मैं तेरे वोट का मुल पावांगा, मैं रिजवी या जरदारी नहीं, मदारी नहीं, पटवारी नहीं। ऐ कराची की कौम, मैं तेरे वोट का मुल पावांगा, मैं रिजवी या जरदारी नहीं, मदारी नहीं, पटवारी नहीं। बस मैं इतनी बात करता हूं कि आपने अपना फैसला करना है। क्या आपने खत्म नबूवत के गद्दारों को वोट देना है, नामूस रिसालत के गद्दारों को वोट देना है, कौम को लूट कर खाकर जाने वालों को वोट देना है, और कौम को फ्रॉड लगाकर वोट देना है? तुम कौम को बेवकूफ बनाना चाहते हो, कौम को फिर उस तारों के पीछे लगाना चाहते हो, तो कौम जाग चुकी है। कौम न दाएं देखेगी न बाएं देखेगी, ये कौम फैसला करेगी कि 8 वाले दिन ठप्पा किस पर लगाएगी। आवाज आनी चाहिए, ठप्पा किस पर लगाएगी? ठप्पा किस पर लगाएगी? ठप्पा किस पर लगाएगी? ठप्पा किस पर लगाएगी? आवाज नहीं आई यार मुझे। ठप्पा किस पर लगेगा? ठप्पा किस पर लगेगा? ठप्पा किस पर लगेगा? और नारा क्या लगेगा? अब तो बागे जना से आवाज जरदारी हाउस तक जाएगी। अब तो बागे जना से आवाज बिलावल हाउस तक जाएगी। अब तो जनाब बागे जना से आवाज लंदन तक जाएगी। अब तो बागे जना से आवाज हर उस जालिम और
काबिर तक जाएगी। हर अब तो जनाब बागे जना से आवाज जाती उम्रा तक जाएगी, और अब तो बागे जना से आवाज बहादुराबाद तक जाएगी कि अब पाकिस्तान तुम्हारा नहीं है और हमारा। जहां दिल करेगा, जिस टाइम दिल करेगा, जिस वक्त दिल करेगा, हम लब्बैक का जलसा भी करेंगे, लब्बैक का नारा भी लगाएंगे, लब्बैक की बात भी करेंगे और हर जालिम को गिरबान से पकड़ेंगे, इसलिए कि ये मुल्क हमारे बड़ों का है, तुम्हारे बाप ने नहीं बनाया। हाँ जी, साउंड से नहीं नारा लगेगा, आवाज आपकी आएगी। मैंने नारा लगा के चुप कर जाना है। मैं ये समझूंगा कि मेरी बात अहलियाने कराची तक, मेरी कौम के बच्चों तक, मेरी कौम के नौजवानों तक, मेरी कौम के बूढ़ों तक, मेरी कौम की माँ और बहनों तक पहुंच चुकी है। मैं नारा लगा के चुप कर जाऊंगा, आपकी आवाज बताएगी कि कराची किसका, कराची किसका, लब्बैक का, कराची किसका, 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 और कराची का नारा क्या, लब्बैक लब्बैक। सारे हाथ बुलंद करो, सिक्योरिटी वालों आप भी, सब पूरा पंडाल स्टेज से सब सारे हाथ ऊपर करो, सब हाथ ऊपर करो, सारे हाथ ऊपर करो, सारे हाथ ऊपर करो। लोग देखो कुफर पूरा कांप रहा है, मोहम्मद अरबी के गुलाम आ गए हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। लाइट ऑन करें, लाइट ऑन करें, लाइट ऑन करें, बताएं कराची लब्बैक वालों का है, लब्बैक लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करके सब सिक्योरिटी वाले सब 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। कराची जोर लगाओ यार, ये आपका नारा बाबा जी की जनाब मज़ारे पुरनवार पर जाए और उनको पता लगे कराची वाले आज भी वफादार हैं, मोहम्मद अरबी के नाम पर वफादार हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। पंडाल के बाहर हाथ उठाओ, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस अब ठप्पा किस पर, 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 और कराची किसका, 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 कराची किसका। और कराची वालों जीत कर जाकर बाबा जी के मजार पर सलूट मारना है।
اور ہم نے یہ کہنا ہے کہ بابا جی آپ کا نعرہ تو کچا، جھنڈا تو کچا، ہم نے تو آپ کے اس جھنڈے کو نیچے بھی نہیں آنے دیا اور محمد عربی کے دین کو تخت پر لے کر آئے ہیں۔